Hello students, welcome to Paramount Public School. Today we will discuss a chapter 3rd for class 7th computer science book Alpha. The chapter name is Computer Virus. What is a computer virus? But in this chapter we came to know about what is a computer virus, how it can spread in our systems, and what are the types of computer virus and how we can remove a virus from a system. So it's a very important chapter. Be careful about reading this. Okay, so let's start the chapter. Firstly, there's a brief introduction about a computer virus. What is a computer virus? Computer virus होता क्या है बेटा? Computer virus is a small software or a code that can cause damage to our data in the system, or that can damage our information in the system or the softwares in our system. सी क्या होता है, ये कंप्यूटर वायरस एक टाइप का कोड होता है. इट्स अ प्रोग्राम और ए कोड जो एक लो लेवल लैंग्वेज में मोस्टली लिखा जाता है. लो लेवल लैंग्वेज मींस सी एंड सी प्लस प्लस में मोस्टली जो कंप्यूटर वायरसेस होते हैं इन्हीं लैंग्वेजेस में कोड किए जाते हैं. और इन कोड्स को जब किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू या किसी भी इंटरनेट के थ्रू या किसी भी रिसोर्स के थ्रू हमारे सिस्टम पे जब एंटर किया जाता है तो ये हमारे सिस्टम के डेटा को, इन्फॉर्मेशन को या किसी सॉफ्टवेयर को करप्ट कर देते हैं या उनको डैमेज कर देते हैं. सो कंप्यूटर वायरसेस का काम ही है टू डैमेज द इंफॉर्मेशन इन अवर सिस्टम. Virus is a name that is given to that particular program or a code which can damage our system. So उसको ये नाम दिया गया है. The full form of virus is Vital Information Resource Under Siege. Means ऐसी information जो इलीगल वे से हमारे सिस्टम पे एंटर करती है और हमारे डेटा को सीज करती है या हमारे डेटा को स्टील आउट करती है. There are many types of viruses in this in our system, but in your syllabus, in your book, we have only this 8 type of viruses, so we will discuss only these type of viruses. The first one is macro virus, then file infective virus, memory resident virus, directory virus, direct action virus, the boot sector virus, multipartite virus, and email virus. So let's discuss about these viruses. The first one is macro virus. Macro is a option which we mostly found in Microsoft Office. So macro virus, what is macro virus? A virus which affects the files of Microsoft Office. जो भी हमने बेटा MS Word में, MS Excel में या MS PowerPoint में जो भी फाइल्स बनाई होगी, if this macro virus enters in our system, it will directly affect that files. अगर ये हमारे सिस्टम पे एंटर कर जाता है मैक्रो वायरस तो ये डायरेक्ट उन्हीं फाइल्स को इफेक्ट करेगा, उन्हें करप्ट कर देगा या उन्हें डिलीट कर देगा. ओके, दिस इज़ द मैक्रो वायरस. These are some we have some examples of viruses also. Relax, Melissa.a, Metis and Y2K. These all are the macro viruses. See, macro virus only affect these 3 types of files: Word, Excel and PowerPoint. Now next one is file infector viruses. What is file? The name told that file infector viruses. See, it infects the executable files with the intent to cause permanent damage or make them unusable. You know what is executable file? Executable file is that file which contains .exe extension, and .exe extension is always contained by softwares. कोई एप्लीकेशन है, कोई सॉफ्टवेयर है जिसे आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एग्जीक्यूटेबल फाइल. आप कुछ नेट से डाउनलोड करते हैं कोई सॉफ्टवेयर, आप यू हैव डाउनलोडेड अ गेम. अगर आपने कोई गेम भी डाउनलोड की है इलीगल वे से, जैसे आप लोग फ्री गेम्स डाउनलोड कर लेते हैं अपने सिस्टम से, दे आर एग्जीक्यूटेबल फाइल्स. और ये फाइल इन्फेक्टर वायरस उन एग्जीक्यूटेबल फाइल्स के साथ ही अटैच होता है बेटा. अब जब भी आप इंटरनेट से कोई इलीगल वे से या कोई फ्री आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो उसके साथ वायरसेस ज़रूर अटैच होते हैं. सो ये जो फाइल इन्फेक्टर वायरस है, इट अफेक्ट्स द एग्जीक्यूटेबल फाइल्स ऑफ योर सिस्टम. जितनी भी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होंगी, आपकी सॉफ्टवेयर होंगे इंस्टॉल आपके सिस्टम पे, उनको अफेक्ट करेगा, उनको डैमेज करेगा ये.
Okay, the file infecting virus overrides a code or inserts infected code in an executable file. या तो ये उन फाइल्स को करप्ट कर देगा या फिर अपना ही कोड उन सॉफ्टवेयर में एंटर कर देगा जिससे वो सॉफ्टवेयर वर्क करना बंद कर देंगे. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स. क्लीविक्स एंड कास्केड इज द टाइप ऑफ फाइल इन्फेक्टिव वायरसेस. See this, how files has been corrupted. Now the next one is memory resident viruses. memory हमारे सिस्टम पे कितने टाइप की मेमोरी होती है बेटा? 2 टाइप्स की, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. ओके, प्राइमरी मेमोरी इज जिसे हम रैम बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी. एंड सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होती है बेटा? द हार्ड डिस्क. ओके, सो These type of viruses install themselves as a part of operating system. ये क्या करते हैं बेटा? ये हार्ड डिस्क में और मेमोरी में अपने आप को इंस्टॉल कर लेते हैं. और उससे क्या होता है, मोस्टली ये रैम में जाके अपने आप को इंस्टॉल कर लेते हैं. और रैम को ये लगता है कि दिस सॉफ्टवेयर इज़ ए पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. रैम को ये लगता है कि ये जो इंस्टॉल किया गया ये सॉफ्टवेयर यानी वो पर्टिकुलर वायरस ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट है. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है बेटा? द विंडोज 7, विंडोज 10, विंडोज 8 जो आपने अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर रखी है. और एनी टाइप ऑफ विंडो, आइदर इट इज़ ए मैक ऑपरेटिंग सिस्टम और इट इज़ ए लिनक्स, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम्स ही हैं. तो ये अपने आप को रैम में हाइड करके रखता है एज ए पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. और जैसे ही हम ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करते हैं ये भी साथ में रन हो जाता है और क्या करता है, हमारी फाइल्स को इन्फेक्ट करता है. ओके, सो Rendex and CMJ and Weave, these are the examples of memory resident virus. See the example, see the message, the machine is infected with the memory resident virus. Now next one is directory virus. Beta, there are 3 names of this virus: directory virus, cluster virus and file system virus. Okay, these viruses change the path that indicates the location of a file. आप लोग जब भी कोई डेटा अपने सिस्टम में सेव करते हैं, यू विल गिव अ नेम टू दैट पर्टिकुलर फाइल और फोल्डर. आप उस फोल्डर को या उस फाइल को एक नेम देते हैं और उसे किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पे सेव कर देते हैं. फॉर एग्जांपल, मैंने एक MS वर्ड की फ़ाइल बनाई विद द नेम ऑफ PPS और उसे D ड्राइव में सेव कर दिया. ओके, now my file named as PPS saved in D drive. and if अगर मेरी सिस्टम में ये डायरेक्टरी वायरस या ये फाइल सिस्टम वायरस आ गया तो ये क्या करेगा, ये उस पर्टिकुलर फाइल का पाथ चेंज कर देगा बेटा. मेरे पास मुझे इतना पता, आई नो वेल दैट इन D drive I have to open my file, but when this virus came on our system, मैं D ड्राइव को जब ओपन करूँगा तो मुझे वो फाइल ही शो नहीं होगी बेटा. होगी वो हमारे सिस्टम में ही, बट उसका पाथ चेंज हो चुका होगा, उसका एड्रेस चेंज हो चुका होगा. ओके, सो दिस वायरस अफेक्ट्स द एड्रेस ऑफ द फाइल्स. सो मोस्टली दीज वायरसेस आर हाइडन इन हार्ड डिस्क. ये हार्ड डिस्क पे ही इफेक्ट करते हैं, इसीलिए उसकी लोकेशंस को चेंज करते रहते हैं. और मोस्टली ये भी .exe एंड .com फाइल्स को इफेक्ट करते हैं बेटा. जब भी मेरे पास MS वर्ड की फ़ाइल बनेगी तो MS वर्ड भी एक .executable फाइल है, तो वो भी उसको इफेक्ट कर देगा ये वायरस. इट इज़ इम्पॉसिबल टू लोकेट द ओरिजिनल फाइल्स आफ्टर इट इज़ इन्फेक्टेड. अगर उस फाइल का एक बार पाथ चेंज हो गया देन यू आर अनेबल टू फाइंड दैट फाइल इन आवर सिस्टम, बिकॉज उसको लोकेशन, उसका नेम, सब कुछ चेंज हो चुका होगा. सो दिस इज़ अ वेरी डेंजरस वायरस. एग्जाम्पल इसकी है DI2 वायरस. दिस वायरस आल्सो इफेक्ट्स द मेमोरी. बेटा अगर आपकी फाइल्स के नेम चेंज होते गए बट वो और आप बार बार उनको बनाते गए, देन क्या होगा, एक डुप्लीकेसी क्रिएट होती रहेगी, सेकंड आपकी मेमोरी फिल होती रहेगी. सो दिस वायरस इज़ वेरी डेंजरस वायरस. सी द डायरेक्टरी वायरस, ये आपके शॉर्टकट्स क्रिएट कर देगा. देखिए जितने भी सॉफ्टवेयर हैं सब शॉर्टकट्स क्रिएट हो गए. जब आप उनको ओपन करोगे तो कुछ भी शो नहीं होगा, आपको लगेगा ये मेरी फाइल है, बट जब आप इसको ओपन करोगे तो आपको कुछ भी शो नहीं होगा. नाउ नेक्स्ट इज डायरेक्ट एक्शन वायरस. This virus mostly find in root directory of hard disk. What is a root directory?
रूट डायरेक्टरी होती है बेटा, देखिए जैसे ही आप अपने सिस्टम को ऑन करते हैं, whenever you switch on your system, आपकी हार्ड डिस्क में सबसे पहले एक कोड होता है जो ये बताता है कि वो में ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे पड़ा है और उसे कब ओपन करना है। यानी कि उस द फर्स्ट स्टेप द हार्ड डिस्क विल follow that where is the operating system lies in our system and when it has to be loaded in the system। आपको वो हार्ड डिस्क ही बताती है कि हार्ड डिस्क को ये पता चलता है उससे कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है और कहाँ पड़ा है मेरे में, बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑलवेज इंस्टॉल्ड इन हार्ड डिस्क। सो ये जो डायरेक्ट एक्शन वायरस है, इट इफेक्ट्स दैट पर्टिकुलर रूट डायरेक्टरी। हार्ड डिस्क को ये पता ही नहीं चलेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे है, और जब ऑपरेटिंग सिस्टम का पता ही नहीं होगा तो वो ऑन कैसे करेगा सिस्टम को बेटा, आपको डिस्प्ले में क्या शो करेगा। ओके तो इसीलिए वो शो नहीं होता। और इसकी एक और खासियत है कि ये अपनी लोकेशन चेंज करते रहता है। फॉर एग्जांपल मुझे पता चल गया कि दैट दिस वायरस इज़ इन रूट डायरेक्टरी, मैं जब रूट डायरेक्टरी ओपन करूँगा ये कहीं और चला गया होगा, ये हार्ड डिस्क के किसी और ऑप्शन में चला गया होगा। सो ये अपनी लोकेशन फ्रीक्वेंटली चेंज करता रहता है और अपने आप को रिपीट करता रहता है बेटा। आज एक वायरस है, कल को 2 हो जाएंगे, थोड़ी देर में 4 हो जाएगी, ये अपने आप को रेप्लिकेशंस करता रहता है। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी डेंजरस वायरस। आपका पूरा सिस्टम करप्ट कर देगा, ये आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम तक नहीं मिलेगा, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम भी करप्ट हो जाएगा। एंड मोस्टली ये वायरस autoexec.bat पाथ में होता है। ये एक पाथ है जिसके थ्रू हार्ड डिस्क को ऑपरेटिंग सिस्टम की इंफॉर्मेशन मिलती है। सो वियना वायरस इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस डायरेक्ट एक्शन वायरस। सी दिस इज autoexec.bat। यहाँ पे ही पाथ होता है जिससे जो हार्ड डिस्क को ऑपरेटिंग सिस्टम का पता चलता है और ये इस पूरे पाथ को करप्टेड करता है। नाउ नेक्स्ट इज बूट इन्फेक्टिव वायरस, और इसको हम बूट सेक्टर वायरस भी बोलते हैं। सो फर्स्टली टेल मी व्हाट इज अ बूटिंग। व्हाट इज अ बूटिंग? बूटिंग इज अ प्रोसेस बेटा, द फर्स्ट स्टेप जब हम लोग सिस्टम को ऑन करते हैं तो सबसे पहले सिस्टम में कहाँ कहाँ पे बेटा पावर आती है। द फर्स्ट वन इज़ आपके कीबोर्ड पे, आपके CD रोम पे, यहाँ पे सबसे पहले पावर आती है बेटा। अब वो दिस इज़ कॉल्ड अ बूटिंग। सो इट अटैक्स द मास्टर बूट रिकॉर्ड ऑफ हार्ड डिस्क। मास्टर बूट रिकॉर्ड होता है जहाँ से हार्ड डिस्क को पता चले कि ये बूटिंग प्रोसेस कहाँ से करना है, यानी कि सबसे फर्स्ट प्रोसेस कहाँ से करनी है। जब ये बूट होगा उसके बाद आपका ऑपरेटिंग सिस्टम शो होगा। सो ये बूट इन्फेक्टिव वायरस जो है ये मास्टर बूट रिकॉर्ड्स को इफेक्ट करता है। ओके एंड इट इफेक्ट्स द कंप्यूटर स्टोरेज सेक्टर वेयर स्टार्टअप फाइल्स आर फाउंड। स्टार्टअप फाइल्स मीन कौन कौन ऑपरेटिंग सिस्टम के स्टार्ट होने के बाद कौन कौन सी फाइल्स ओपन होती हैं, दैट आर कॉल्ड स्टार्टअप फाइल्स। तो ये उन स्टार्टअप फाइल्स को फाउंड करके उनको करप्ट करता है। स्टार्टअप फाइल्स होती है बेटा स्टार्टिंग पे जो फाइल्स हमारी ओपन होती है। And the third one is the boot sector contains all the files required to start the operating system and other bootable programs। क्या होता है कि बूट सेक्टर में ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए जो जो फाइल्स चाहिए, यानी कि एक विंडो को मेरे स्टार्ट करने के लिए जो जो फाइल्स चाहिए और जो जो प्रोग्राम्स चाहिए ये उनको करप्ट कर देते हैं। मोस्टली ये किसी भी टाइप के बूटेबल मीडिया होता है बेटा, सी फ्रॉम वेयर वी कैन बूट अवर सिस्टम। बूट मीन्स फ्रॉम वेयर वी कैन स्टार्ट अवर सिस्टम। आप देखिए, आप विंडो को इंस्टॉल करते हैं थ्रू हार्ड डिस्क, ठीक है, कुछ लोग इंस्टॉल करते हैं थ्रू पेन ड्राइव्स। अब ये चाहे आप पेन ड्राइव लगाइए चाहे आप हार्ड डिस्क यूज़ कीजिए, ये बूट सेक्टर वायरस आपके दोनों डिवाइसेस को करप्ट कर देगा। तो मीन्स आपको ये ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड होने नहीं देगा। सेम जैसे मैंने पिछले वायरस में किया था, ये ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही इफ़ेक्ट करेगा। और इसके लिए हम लोग जब एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं तो हमें वो बूटिंग के टाइम पे ही इंस्टॉल करना पड़ता है। वो आप देखिएगा, जब कोई एंटीवायरस इंस्टॉल हो चुका होगा तो बूटिंग के टाइम पे भी अपलोड होगा और वहाँ पे भी बूट सेक्टर वायरस को स्कैन करेगा। हम आगे पढ़ेंगे एंटीवायरसेस के बारे में। सो ब्रेन वायरस, डिस्क किलर एंड polyboot.b is the type of boot sector virus. Next is multipartite virus. See, multipartite virus, the name tell कि वो मल्टीटास्किंग करता है, वो नेम से ही पता चल रहा है। ये बोथ बूट सेक्टर और एग्जीक्यूटेबल फाइल्स दोनों को ही करप्ट कर देगा। अगर बूट सेक्टर में अगर ये हमारे सिस्टम पे आ गया
और बूट सेक्टर इससे बच गया इन्फेक्ट होने से, मे बी इफेक्ट होने से बूट सेक्टर रह गया, तो ये एग्जीक्यूटिव फाइल्स को डिलीट कर देगा या उनको करप्ट कर देगा, और अगर एग्जीक्यूटिव फाइल्स को नहीं करेगा तो बूट सेक्टर को कर देगा. सो दिस टाइप ऑफ वायरस कैन री इन्फेक्ट अ सिस्टम ओवर एंड ओवर अगेन इफ ऑल पार्ट्स ऑफ वायरसेस आर नॉट इरेडिकेटेड. सी बेटा, इसका मीनिंग है कि ये हमारे सिस्टम को बार बार करप्ट करता जाएगा अगर इसके हर एक पार्ट को अपने सिस्टम से नहीं निकाला गया. छोटा सा भी पार्ट अगर सिस्टम में रह गया तो ये कुछ ना कुछ इफेक्ट करता ही रहेगा, चाहे बूट सेक्टर में चाहे एग्जीक्यूटिव फाइल्स पे. दिस वायरस इज आल्सो नोन एज हाइब्रिड वायरस बिकॉज क्या है, ये अपने आप को कंटिन्यूसली रिपीट करता रहता है, एक से दो से दिन ये हाइब्रिड करता रहता है, एक में से निकलता है, अगर डिलीट कर दिया वो पार्ट, अगर छोटा सा पार्ट इसका रह गया तो वो भी इन्फेक्ट कर देगा और बड़ा हो जाएगा. फ्लिप एंड इन्वेडर इज अ टाइप ऑफ मल्टी पार्टाइट वायरसेस. नाउ द नेक्स्ट इज ईमेल वायरसेस. ये बहुत ही बेटा मोस्टली ये वायरस आपको देखने को मिलेगा इन योर ईमेल एड्रेसेस. इट्स अ कोड दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ईमेल मैसेजेस. आपको ईमेल्स आती है ना बेटा कि डैट यू वॉन्ट 20 लाख रुपीज़, आप इस लिंक पे क्लिक कीजिए और अपनी इन्फॉर्मेशन दीजिए. बेटा वो लिंक जो होता है डैट इज़ अ सोर्स फॉर द वायरस. आप जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करते हैं आपके सिस्टम में वो वायरस एंटर हो जाता है. ओके, सो डोंट क्लिक ऑन एनी टाइप ऑफ ईमेल विच इज़ नॉट अंडरस्टैंडेबल बाई यू. ओके बेटा, सो ईमेल्स हमेशा आप, ये वायरस हमेशा ईमेल्स के लिंक्स के थ्रू आपके सिस्टम में आता है. सो जो भी अनवांटेड ईमेल्स होती हैं उनको कभी भी ओपन नहीं करना चाहिए. ठीक है. ईमेल वायरसेस आर मोस्टली लिंक्ड विद फिशिंग अटैक्स इन विच हैकर्स सेंड आउट malicious email messages that appear as if they have been sent from the authorized sources. बेटा फिशिंग इफेक्ट्स, फिशिंग क्या होती है, आपके सिस्टम से इंफॉर्मेशन लेके आपके अकाउंट्स को हैक करना. आपके सिस्टम पे मैंने एक मेल सेंड कर दी और आपको बोला कि यू हैव वॉन्ट 20 लाख रुपीज़, और आपको लगा कि ये किसी बैंक के थ्रू ही आई है मुझे, तो आप क्या करेंगे, उसको क्लिक कर देंगे और मैं आपके जैसे ही क्लिक करेंगे उस लिंक के साथ एक मेरा वायरस अटैच होगा. वो वायरस आपके सिस्टम पे इंस्टॉल होगा और आपके सिस्टम की सारी इन्फॉर्मेशन स्टील करके वो मुझे दे देगा. ओके, सो ये बहुत ही डेंजरस वायरस होता है. यहाँ वो वायरस आता है आपके सिस्टम पे इंटरनेट सर्चेस से, सोशल मीडिया से, या इवन आपके बैंक से, या फिर आपके किसी फ्रेंड ने वो सेंड कर दी इन्फॉर्मेशन. आप लोग सोशल मीडिया समझते हैं, द फेसबुक एंड ऑल, इसके थ्रू भी वायरस एंटर कर जाता है. आपको लगता है कि ये वायरस ये हमारे लिए कोई इन्फॉर्मेशन है, बट वो डेट इज अ वायरस. रैंसमवेयर, फिशिंग, स्पूफिंग एंड की लॉगर्स, दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ ईमेल वायरसेस. ये आपने सुन रखे होंगे. रैंसमवेयर अभी बड़ा ही खतरनाक वायरस है जो आपके सिस्टम पे एंटर करता है और सारी इन्फॉर्मेशन आपकी स्टील कर लेता है. सो दीज आर द टाइप ऑफ वायरसेस which we have learned about this. Okay बेटा, कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे बताइएगा, हम we will discuss it again. See this, when the computer virus enters in your system, you see these are replications of files. ये replications है, यानी अपने आप को रिपीट कर रहे हैं. देखिए 1 से 2, 2 से 3 कितना हो रहा है, देखिए ये देखिए, ये होती है replications. These are the computer viruses. So thank you so much बेटा, have a good day.